Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will learn about FACS, F-A-C-S. First of all, what this FACS is. This is basically a technique. So when we prepare for semester exams, we basically focus on procedure, principle and a lot of things related to the techniques. But in CSIR, nothing like procedure or this is asked. Basically for techniques, when you are preparing for CSIR, you should know their principle and how to analyze their results. So we will be doing this only in this video, which is important for CSIR. So let's start. First of all, what is FACS? FACS stands for Fluorescent Activated Cell Sorting. So we see it is made up of two words, fluorescent activated and cell sorting. What does that mean? First of all, cell sorting. तो हम सेल सॉर्टिंग में क्या करते हैं, सेल को सेपरेट करते हैं. बेसिकली सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, अलग अलग करना. तो हम सॉर्टिंग में क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स की सेल्स को अलग अलग करते हैं, दैट इज सेपरेट आउट करते हैं. रिमेंबर, दिस इज नॉट ओनली सेपरेशन टेक्निक बट ऑल्सो क्वांटिटेटिव टेक्निक. अभी पता चलेगा क्वांटिटेटिव कैसे है. क्वांटिटेटिव मीन्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी टाइप ऑफ सेल की क्वांटिटी क्या है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो उस पर्टिकुलर मिक्सचर में. नाउ द सेकेंड पार्ट इज फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड. सो व्हाट इज दिस फ्लोरेसेंट एक्टिवेटेड? दैट मीन्स द सेल सॉर्टिंग इज बेस्ड ऑन फ्लोरेसेंस. जब हम सेपरेशन करेंगे तो हम अलग अलग सेल्स के अलग अलग फ्लोरेसेंस की बेसिस पे उनको सेपरेट आउट करते हैं. सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस. We all know different cells have different cell markers. हर सेल के ऊपर अपने कुछ सेल मार्कर्स हैं या फिर अलग अलग रिसेप्टर्स हैं. सो हम बेसिकली जब इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं तो हम इन सेल मार्कर्स का यूज करते हैं. क्या करते हैं हम लेते हैं एंटीबॉडीज और इन एंटीबॉडीज को हम टैग करते हैं फ्लोरेसेंट प्रोटीन से. For example, GFP, green fluorescent protein, YFP, yellow fluorescent protein, RFP, red fluorescent protein. So we take antibodies and tag them with fluorescent proteins. These antibodies are specific for the cell markers. That means ये particular antibody जाके different marker से attach होंगी. जब for example this is a particular antibody and this is a cell marker. So when this antibody comes and attaches itself to this cell marker, since this antibody is tagged by fluorescent protein, so we will get fluorescence. And on the basis of this fluorescence, the detector detects and separates out the cells. What is actually happening? We have the cell marker. Antibody specific to the marker comes and attaches itself to this cell marker. As a result, fluorescence is produced and this fluorescence is detected by detector and the separation occurs. For example, सब जो मार्कर्स हैं वो हर सेल पे तो प्रेजेंट नहीं है, अलग अलग सेल्स पे अलग अलग मार्कर्स हैं, तो हम अलग अलग एंटीबॉडीज यूज करके सेपरेट आउट करते हैं. तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल दैट विल बी बेटर.
So let's begin. We will study the cell sorting of apoptotic cells. Cell sorting of apoptotic cells. ओके, सो वी नो जब एपोप्टोसिस होता है तो सेल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द चेंज इज जो फोस्फेटिडिल सीरीन. बेसिकली जो फोस्फेटिडिल सीरीन जो सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पे प्रेजेंट होता है, इनर लीफलेट पे प्रेजेंट होता है, वो फ्लिप हो जाता है और आउटर लीफलेट पे आ जाता है. और क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्ट होने लग जाती है, टूटने लग जाती है, डीएनए फ्रेगमेंट होता है एंड मेनी मोर चेंजेस अकर. तो हम क्या करते हैं, ये जो बेसिकली दो चीजें हैं, फॉस्फेटिडिल सीरीन और सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन, इनको यूज करते हैं सेल सॉर्टिंग के लिए. कैसे करते हैं, हम लेते हैं 2 डाइज दैट वी यूज फॉर द स्टडी ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स. एक है एनेक्सिन 5 FITC, नेक्स्ट इज PI. दिस इज PI डाई. So this annexin VFITC is GFP, tagged with green fluorescent protein. And what this dye does, it binds phosphatidyl serine. And one most important, now it binds phosphatidyl serine. Why it is specifically used in the study of apoptotic cells? Phosphatidyl serine तो नॉर्मल लिविंग सेल्स में भी प्रेजेंट है ना, तो सिर्फ इसमें क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज दिस कैन ओनली बाइंड व्हेन फोस्फेटिडिल सीरीन इज प्रेजेंट ऑन द आउटर लीफलेट. दैट इज जब एपोप्टोसिस हो रहा है तो जो फोस्फेटिडिल सीरीन है वो बाहर वाली लीफलेट पे आ जाता है, और एनेक्सिन तभी बाइंड कर सकता है जब फोस्फेटिडिल सीरीन आउटर लीफलेट पे प्रेजेंट हो. सेकेंड इज PI डाई. ये क्या है, रेड फ्लोरोसेंट प्रोटीन. So that means it gives a fluorescent of red. ये क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्टेड है, उससे पास होते हुए सेल में एंटर कर लेता है. ठीक है, तो क्या करते हैं, दो डाइज क्या है, एनेक्सिन एंड PI डाई. एनेक्सिन is basically green fluorescent protein that binds with phosphatidyl serine present on the outer leaflet, and PI dye is red fluorescent protein which is able to enter the cell when the cell membrane is disrupted. So let's see what actually happens. तो जब हमारी लाइव सेल्स हैं, that is नॉन अपोप्टिक सेल्स या फिर लाइव सेल्स हैं, उनमें ना तो फॉस्फेटिडिल सीरीन बाहर लीफलेट पे आने वाला है और ना तो सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्ट होने वाली है. तो अल्टीमेटली वो ना तो PI से कोई इंटरेक्शन दिखाने वाला है, ना ही वो एनेक्सिन से कोई रिएक्शन दिखाने वाला है. जो हमारी अर्ली एपोप्टोटिक सेल्स होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें सबसे पहले क्या होता है, जो फॉस्फेटिडिल सीरीन है वो बाहर आ जाता है. दैट मीन्स एनेक्सिन से तो वो रिएक्शन दिखा सकती हैं, बट PI, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब नहीं हुई है तो PI के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है. जब लेट एपोप्टोटिक सेल्स आती हैं, उनमें सेल मेम्ब्रेन भी डिस्टर्ब हो जाती है, दैट मीन्स PI से भी रिएक्शन होगा, और फॉस्फेटिडिल सीरीन भी बाहर है, दैट मीन्स एनेक्सिन से भी रिएक्शन होगा. Then we have one more cells, necrotic cells.
रिमेंबर नेक्रोटिक सेल्स जो होती है, ये नेक्रोसिस जब होता है तो सडन इवेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो फॉस्फोडिएस्टीरीन है वो बाहर नहीं आता, दैट मीन्स एनेक्सिन से कोई रिएक्शन नहीं होगी, बट सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होती है तो पीआई से रिएक्शन होगा। सो दिस वी कैन से दिस इज पीआई नेगेटिव, एनेक्सिन नेगेटिव, दिस इज एनेक्सिन पॉजिटिव बट पीआई नेगेटिव, पीआई पॉजिटिव, एनेक्सिन पॉजिटिव, दिस इज पीआई पॉजिटिव, एनेक्सिन नेगेटिव। जब हमारे पास रिजल्ट आता है तो वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। सबको एक्स वाई का क्राइटेरिया पता है, तो रिजल्ट भी जब आता है फैक्ट्स का तो वो इसी फॉर्म में आता है। एक ग्राफ होता है, दो एक्सिस होते हैं, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। नाउ सी दिस इज द ओरिजिन। जो ये वाला क्वाड्रेंट होगा तो वो क्या होगा, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, सॉरी एक्स पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, बिकॉज ये भी y पॉजिटिव एक्सिस है और ये भी x पॉजिटिव एक्सिस है। व्हेन वी मूव दिस साइड, जो ये वाला क्वाड्रेंट है ये क्या होगा, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, ये वाला क्वाड्रेंट क्या है, x नेगेटिव, y नेगेटिव। जब हम इस क्वाड्रेंट में आते हैं तो इसमें क्या है, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। सो अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, रिजल्ट अभी डिस्कस करते हैं कैसे आएगा। सो एक्स वाई का क्राइटेरिया देख लिया। नाउ लेट्स सी, जब हम लेंगे तो हम क्या लेंगे, हम ये एक एक्सिस लेंगे, तो हम क्या लेते हैं, हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं एनेक्सिन और वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे पीआई टाइप। सो ये वाला ओरिजिन, तो ये क्या है, ये एनेक्सिन पॉजिटिव है और पीआई भी पॉजिटिव है। ये क्या है, एनेक्सिन नेगेटिव है बट पीआई पॉजिटिव है। ये क्या है, एनेक्सिन नेगेटिव है और पीआई भी पॉजिटिव है, सॉरी एनेक्सिन नेगेटिव है, पीआई भी नेगेटिव है। बेसिकली जो बोथ नेगेटिव कंडीशन होती है वो हम कंट्रोल सेल्स लेते हैं। जब हम इधर आते हैं तो ये वाला क्वाड्रेंट क्या है, एनेक्सिन पॉजिटिव है बट पीआई नेगेटिव है। ओके, तो अब हमने ऑलरेडी पिछले वाले में देख लिया, दोनों नेगेटिव कंडीशन किस में है, लाइव सेल्स में। तो हमारी लाइव सेल्स किस में होंगी, इस वाले क्वाड्रेंट में हमें लाइव सेल्स मिलेंगी। एनेक्सिन नेगेटिव, पीआई पॉजिटिव किस में है, अर्ली अपोप्टोटिक सेल्स में। Sorry, एनेक्सिन नेगेटिव, पीआई पॉजिटिव इज इन नेक्रोटिक सेल्स। Then both positive condition is present in late apoptotic cells. So in this quadrant we will get late apoptotic cells. Next एनेक्सिन पॉजिटिव और P नेगेटिव किस में है, अर्ली apoptotic cells. So this is how the graph will be represented. Actually ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होगा, आपको अलग अलग डॉट्स मिलेंगी और जो डॉट्स होंगी वो एक एक सिंगल सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन करेंगे तो आपको ग्राफ दिखेगा कैसे दिखता है, और क्या होगा, हर एक डॉट एक सिंगल को रिप्रेजेंट कर रही होगी और फ्लोरेसेंटली हमें वो दिखेगी। सो दिस इज हाउ वी एनालाइज देम। हम स्टडी करते हैं कि कंडीशंस कौन कौन सी हैं और उनके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो लेट्स सी विद द क्वेश्चन। This is a question asked in June 2020 exam. First shift. So what is this? Following are the typical dot plots of cytometric data obtained from peripheral blood cells. तो डाटा किसका है, white blood cells हमने स्टडी किया, उनका डाटा है। R1 in plot 1 shows the selection window of cells which were further analyzed based on immunostating plot 2. Analyze the given data and choose the correct option representing the type of cell population in plot 1 selected and selected. So basically क्या किया, पहले तो हमने जो ब्लड सेल्स हैं उनको सेपरेट आउट किया, तो उनका ये प्लॉट आया प्लॉट 1। फिर हमने क्या किया, इसमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन लिया और उसको फर्दर एनालाइज करके प्लॉट 2 में किया। अब हमें क्या करना है, हमें प्लॉट 2 में अलग अलग आ गई और हमने उसके बेसिस पे
सेपरेशन कर लिया और हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी कंडीशन है। सो हमें जो ग्राफ पता है वो हम देखते हैं। चलो इधर क्या है, y एक्सिस पे हमारे पास क्या है CD4, x एक्सिस पे हमारे पास क्या है CD8। सो ये वाला कॉलम क्या होगा CD4 नेगेटिव CD8 नेगेटिव, दिस इज A। अब यहां पे क्या है C, ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज CD4 पॉजिटिव CD8 नेगेटिव, ये वाला पार्ट क्या है CD4 पॉजिटिव एंड CD8 पॉजिटिव, दिस इज D। देन वी हैव B। अब B पार्ट में हमारे पास नेगेटिव क्या है, CD8 हमारा पॉजिटिव है, बस CD4 हमारा नेगेटिव है। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता होना जरूरी नहीं है। अगर आपको पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भी पता है, फॉर एग्जांपल अगर आप जो 4 स्टेटमेंट दिए हैं आपको फॉर श्योर पता है 2 स्टेटमेंट भी 2 इनकरेक्ट है, आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही थी मुझे ये नहीं पता था कि ये सेल्स लिम्फोसाइट्स है या न्यूट्रोफिल्स है, मैं कैसे प्लॉट 1 को डिस्टिंग्विश करूं, बट मुझे ये पता था कि मैं प्लॉट 2 को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकती हूँ। तो मैंने आंसर वैसे ही अटेम्प्ट किया। CD4 नेगेटिव एंड 8 नेगेटिव, ए ये होना चाहिए, ठीक है हमारा ये। नेक्स्ट इज हमारे पास B क्या है, CD8 पॉजिटिव CD4 नेगेटिव, ठीक है ये ऑप्शन बी। C क्या है, CD4 पॉजिटिव CD8 नेगेटिव, ठीक है ये भी। CD4 पॉजिटिव और CD8 पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन जितनी मुझे पता थी यहां से एनालाइज करके ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। So this is how you analyze the facts results, and basically the question is asked in this form only. So this is the analysis of the facts and with the PYQ. I hope you like the video. Please like, share and subscribe. And for any question you can comment below. Thank you and have a nice day.